السلام علیکم دوستوں آج ہم جس ناول کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ میرے پسندیدہ ناول میں سے ایک ہے، جس کا عنوان ہے جنات کا غلام، جس کو تحریر کیا ہے شاہد نذیر چودھری نے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صرف 2 رتی افیم حاصل کرنے کے لیے اس قدر خوار ہونا پڑے گا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں، اور اب مجھے اس عذاب سے جان چھڑانے اور فرار کا کوئی راستہ سلجھائی نہیں دے رہا۔ اس تپتی دوپہر میں نہر کے کنارے موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، یہ لالو قصائی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آوارگی سے میں سخت عاجز آ چکا تھا۔ 3 بار مشکوک انسان سمجھ کر پولیس نے ہمیں روکا تھا، مگر میرے تعارف کرانے پر وہ چھوڑ دیتے تھے اور ہم افیم کی خاطر ایک نئے گاؤں کی طرف جا نکلے تھے۔ نہر کے سیپل سے 1 کوس پہلے جب لالو قصائی نے مجھے مولیا گاؤں کی طرف موٹر سائیکل کا رخ موڑنے کی ہدایت کی تو میں گھبرا گیا اور موٹر سائیکل روک دی۔ مولیا منشیات فروشوں کا گڑھ تھا۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی خاطر میں نے اپنے خوف کو دبا لیا اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لالو اب مولیا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے 2 رتی افیم لینی ہے اور اس کے لیے تم نے مجھے 12 گاؤں گھما دیے ہیں۔ ہر بار تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا کام فلاں گاؤں میں ہو جائے گا۔ چودھری صاحب غصہ نہ کرے، میں بھی خوار ہو رہا ہوں۔ میں نے آج میلے سے جانور لینے جانا تھا۔ کل گوشت کے لیے ایک بھی جانور نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں صرف آپ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہوں۔ لالو کام تو مجھے بھی بہت ہیں۔ صبح میرا انگریزی کا پرچہ ہے، لیکن میں ایک دکھی عورت کی خاطر یہ نیکی کرنے نکلا ہوں۔ تو جانتا ہے پوری پٹی پر پولیس نے ناکے لگا رکھے ہیں۔ اگر میں صحافی نہ ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں پکڑ لیتے۔ لالو قصائی کی چندہائی ہوئی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک آئی اور بولا، پولیس نے آپ سے متا لگا کر مرنا ہے جی؟ ویسے بھی یہ راجو ڈوگر کا علاقہ ہے، اس نے تانے خریدے ہوئے ہیں، آپ تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں۔ چلے مجھے یقین ہے مولیا میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹگنے قد کا مالک یہ لالو قصائی میرے دوست کے گاؤں ملک وال کا رہنے والا تھا۔ عام سی شخصیت کا روکا سوکا نوجوان تھا۔ گاؤں میں بڑے گوشت کی ایک ہی دکان تھی جو لالو قصائی کے باپ دادا کے وقتوں سے چلی آ رہی تھی، اور اب لالو آبا کی گدی سنبھالے ہوئے تھا۔ میں اس وقت تک اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کا گھناؤنا کردار مجھ پر عیاں ہوا تو اس مسکین صورت کے پیچھے ایک چال باز مکار اور انتہائی بدگو شخص چھپا ہوا نکلا۔ اگلی صبح میرے BA کا انگریزی پرچہ تھا، مگر اپنے بابا جی کی خاطر میں شرمناک مہم میں نکلا تھا۔ مجھ پر سالانہ امتحان کا خوف بھی طاری تھا، اور اس پر متضاد کہ مجھ جیسا شخص اس نے صحافت کو ایک مشن سمجھ کر اختیار کیا تھا، اور جو ہمیشہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اپنا قلم استعمال کرتا تھا، خود ایک گھناؤنے فعل کے ارتکاب پر مجبور تھا۔ مجھے ڈر تھا لالو قصائی نے مجھے افیم دے دی اور پولیس نے ناکے پر تلاشی کے بعد برآمد کر لی تو میرا کیا بنے گا؟ عزت و نفس اور خاندانی عزت وقار کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے والے ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی تہمت اور بدنامی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ افیم رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ ایک ایسا نوجوان جس نے غلطی سے بھی سگریٹ نہ تھاما ہو، اس پر افیم نوشی کا الزام عام سی بات نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس الزام میں پکڑا گیا تو والد صاحب سے خوب جوتے پڑیں گے، وہ تو مجھے پولیس سے ہرگز نہیں بچائیں گے اور اپنا غصہ گھر کے دوسرے افراد پر بھی نکالیں گے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ملکوال پڑھنے گیا تھا، اب اس کے کرتوتے دیکھ لو۔ میں نے بارہا دل میں یہ دعا کی کہ یا الہی مجھے افیم نہ ہی ملے تو اچھا ہے، لیکن جس بزرگ ہستی سے میں وعدہ کر کے آیا تھا اس کے سامنے مجھے انکار کرنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ افیم بھی نہ ملی تو میری یہ کوشش بھی مجھے بابا جی کی نظروں میں سرخرو کر دے گی۔ مولیا سے 1 کوس پہلے لالو قصائی نے مجھے روکنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ ہو، اب کیا ہوا ہے؟ میں نے فٹافٹ بریک لگائی۔ اس کچے پر موٹر سائیکل اتارے اس نے سرگنڈو کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راستہ تو مکین سائیں کے آستانے کی طرف جاتا ہے، مولیا کے لیے یہاں سے کوئی راستہ نہیں جاتا۔ میں نے کہا، بادشاہ ہو، میں نے سوچا ہے مکین سائیں کی زیارت کرتے چلیں۔ سرکار کے علاقے میں آیا ہوں تو ان کے درشن کیے بغیر کیسے آ سکتا ہوں؟
लालू कसाई सरफराशाना अंदाज में बोला, सरकार को पता चल जाएगा लालू इधर से गुजरा है, वो नाराज होंगे। यार तू मुसीबत बन गया है। मैंने तुझे क्या कहा था कि मेरा काम जल्दी कर दे, मगर 3 घंटे से तू मुझे कभी एक गांव और कभी नहर के किनारे लिए भाग रहा है। अब तुझे मक्कन साई की जियारत तंग करने लगी है, मैंने जुल्लाते हुए कहा, और मोटरसाइकिल खड़ी करके नीचे उतर गया और कहा, तू अकेला जियारत करके चला जा, मैं बंगो और चरसू के इलाकों में नहीं जाता। लानत बेचता हूँ मैं इस खिदमत पर, मैं जा रहा हूँ। मैंने फौरन फैसला किया कि बाबा जी से माफी मांग लूंगा कि मैं अफीम नहीं ला सका, मगर इस तरह मंशियात फरोशों के इलाकों में ख्वार होते फिरना अब मुझे गवारा ना था। मैंने जो उन्हें मोटरसाइकिल स्टार्ट की, लालू कसाई अचक कर पीछे बैठ गया। जैसे आपकी मर्जी जनाब, आपको नाराज थोड़ी करना है। अभी मैंने गेयर लगाई ही था कि झंडों के पार से किसी ने नारा मस्ताना बुलंद किया, हक सरकार, या मदद मस्कीन साई सरकार, या मदद मक्कन साई सरकार। मैंने चौंक कर इधर देखा तो वो हट्टे कट्टे मलंग किस्म के नौजवान मक्कन साई के साथ हमारी तरफ आते दिखाई दिए। सरकार आ गई। लालू अफरा तफरी से मोटरसाइकिल से उतरा तो इसकी शलवार का पांचा मोटरसाइकिल के बैदान में फंस गया और वो चकरा कर नीचे गिरा, मगर अपनी पीर की अकीदत का मारा बरक रफ्तारी से उठा और मेरे सरकार, मेरे साईं बाबा, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, कहता हुआ लालू कसाई इसके कदमों में जा गिरा। इस दौरान मक्कन साई खासा करीब आ चुका था। फिर वो मुर्शिद के मिलाने का मंजर देखते हुए मैं मक्कन साई की जियारत से भी मुस्तफीद हो रहा था। 6 फीट कद तेल में गूंगी लंबी लंबी लटे, सिया चोगा में मलबूस, पैरों से नंगा, दोनों हाथों में अतीक, यमनी, नीलम और जमरूद की अंगूठियां, कलाई में फौलादी कड़े, गले में मोटी दानों की लंबी सी माला, गहरी आंखें, कैरो व कताल की सुर्खियां लिए हुए, लंबी दाढ़ी, दहाना कला, दांत सियाही, माइल छोड़े नतने। मक्कन साई का ये सरापा अपने सामने देखकर मैं एक बार तो नजरे झपकना भूल गया। इसकी शख्सियत में भरपूर वजदानी तासुर था। इसकी आंखों में देखते और सरापे का जायजा लेते हुए इसके सामने ख्वामख्वाह मुअद्दब हो जाना एक आम सी बात थी। इसके पास से काफूर की खुशबू आ रही थी। मैंने सुन रखा था कि इसके आस्थाने या डेरे पर बंगी और चरसी पड़े रहते हैं। इसकी करामात का डंडोरा पीटते नहीं तकते, पुलिस इसके मुरीदों पर हाथ नहीं डालते थे और नशी किस्म के गदागर इसका नाम लेकर जिस दर पर पहुंचते, बदअकीदा लोग इन्हें खाली वापस ना भेजते। सुना था कि किसी ने इस फकीर के साथ बदतमीजी की और इस पर अजाब आ गया। ये सच्चाई थी या नहीं, मगर इसका सहारा लेकर मक्कन साई के फकीर सारे इलाके में फैले हुए थे। इसका नतीजा ये निकला कि कमजोर, गरीब और वहम परस्तों के शिकार फारिगुल अबला नौजवान इससे उम्मीदें वाबस्ता करने लगे और अपने घरों से फरार होकर इसके डेरे पर बैठकर नशा करते रहे। इनके घर वाले अपने बच्चों की बर्बादी का रोना रोते। अखबारात में खबर शाया होती कि नहर और बिल्ले का सारा इलाका एक तरफ राजूड़ व घर और दूसरी तरफ मक्कन साई की वजह से मंशियात का गढ़ बन चुका है, जिससे नौजवान नस्ल की सेहतमंदाना सरगर्मियां मफकूद हो चुकी है और वो मंशियात में गर्क रहने लगे हैं। मक्कन साई पर इल्जामात तो आते थे, मगर आज तक इसके इलाके में चोरी, डाके या किसी कत्ल वगैरह की वारदात नहीं हुई थी। इसके मुरीद इसको अपने मुर्शिद की करामात और दबदबा करार देते थे। इसके इलाके से कुछ ही दूर नहर की पटरी पर दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते और कई को मार कर नहर में फेंक दिया जाता था। राहजनी, लूट मार और मंशियात की वजह से ही पुलिस ने यहाँ पर नाके लगा रखे थे। पिछले साल इंतजामिया ने मक्कन साई के खिलाफ एक्शन भी लिया था, मगर एक वाकया ऐसा रोनुमा हुआ कि इसके बाद पुलिस ने मक्कन साई के आस्थाने का रास्ता देखना ही छोड़ दिया था। हुआ यूं था, पुलिस जब इसके आस्थाने पर पहुंची तो मक्कन साई 10 फुट गहरे कब्र में चिल्ला काट रहा था। इसके मुरीद कब्र के गिर्द बैठे बंग
घूट रहे थे, कुछ तो चरस के सिगरेट पी रहे थे। वो पुलिस को देखती ही मजज़बाना अंदाज में नारे लगाने लगे, ओए आज सरकार से सरकार मिलने आई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने इनके नारों पर इन्हें डांटा और इंतहाई सख्ती से पेश आया। तमाम मलंगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर पीरों, फकीरों और रूहानी मालूमात को खातिर में नहीं लाता था। इसने पूछा, ओए मक्कन साई कहाँ है? माई बाप सरकार तो सो रहे हैं। एक मलंग जो गालिबन दूसरे मलंगों का कायद था, इसने बताया। किधर सो रहा है? अंदर है क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा तो मलंग बोला, सरकार मक्कन साई बिस्तर पर नहीं सोते, वो तो जमीन के अंदर सोते हैं। ओए बक ना कर, सीधी तरह बता किधर है तुम्हारा मक्कन? आज मैं इसमें से बाल निकाल दूंगा चरसी कहीं का। सरकार हमारी मुर्शद की शान में गुस्ताखी ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। ए बांका किस्म का मलंग इंस्पेक्टर को आंखें दिखाने लगा। ओए तू! इंस्पेक्टर ने इसे गाली दी और चिड़ी से इसकी पिटाई शुरू कर दी। मलंग इसकी मार सहता रहा और इसने एक बार भी उफ न की। बोला, मेरी बूटी बूटी कर दो बेशक, ये मार तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मलंग का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर के अलावा दूसरी सिपाहियों ने भी इसकी धुलाई कर दी, मगर वो बांका मलंग दलेरी से मार सहता रहा। बिलाखिर इंस्पेक्टर का ही तक हार कर हांफते हुए इसने सिपाहियों से कहा कि मक्कन पीर को तलाश करो। इस पर मार खाने वाले मलंग बोला, मेरे सरकार तो इधर इस महफिल में सो रहे हैं, तुम इन्हें कहाँ ढूंढते फिरोगे थानेदार जी? इसने कब्र की तरफ इशारा किया तो इसका लहजा इंस्पेक्टर को तेज दिलाने लगा और वो बोला, मर गया है मक्कन साई? बताते क्यों नहीं, मर गया है क्या? कब मरा है ये? थानेदार जी, मरे हमारे दुश्मन, सरकार तो अंदर चिल्ला काट रहे हैं और वो आपके सारी हरकतें देख रहे हैं। चिल्ला काट रहा है? क्या मतलब? इस कब्र में? कब से है कब्र में? इंस्पेक्टर गुस्सा और हैरत की मिली जुली कैफियत के साथ पूछने लगा। सरकार को आज 30वां रोज है, 40 रोज तक इन्हें इस कब्र में रहना है और पढ़ाई करनी है। एक मोतबर मलंग बोला, अगर सरकार 40 रोज से पहले बाहर आ गई तो कयामत आ जाएगी। कैसी कयामत? ओए! इंस्पेक्टर ने दांत किचकिचाते हुए चढ़ी मलंग के दांतों पर रखते हुए दबाई। बकवास बंद करो और इसे बाहर निकालो। ना सरकार ना, हमारी काल उतार दो बेशक, पर हम ये गुनाह नहीं करेंगे। और एक ऐसा गुनाह चर्सियों, ना नमाज ना रोजा, नशे में हर वक्त गर्क रहते हो, खुदा रसूल की तालीमात पर अमल नहीं करते और अपने बेअमल मुर्शिद के अजाब से डरते हो। चलो और कब्र से बाहर निकालो अपने मुर्शिद को। एक बालश हवलदार ने इन्हें लताड़ा, जनाब खुदा का खौफ करो, हमारे मुर्शिद बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, इनकी शान में बकवास बंद करो गुस्ताख के पुत्र। इंस्पेक्टर दहाड़ा और सिपाहियों से कहा, चलो तुम कब्र खोदो। सिपाही आस्थाने के अंदर से किसी और फावड़े लाए तो मलंग दिहाई देने लगे। इंस्पेक्टर ने इनके सामने मिट्टी हटाई तो नीचे 2 बड़े बड़े तख्ते रखे हुए थे, वो भी हटाए गए तो फोड़ की बेतहाशा खुशबू का झोंका बाहर को निकला और अंदर मक्कन साई छत लेटा हुआ था। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मोटे दानों की तस्बीह इसके हाथ में थी। वो आंखें बंद किए लेटा था। पीरों में मोते के ताजा फूलों का हार था। पास ही पानी से भरा एक गड़ा प्याला और चंद सूखी रोटियां रखी हुई थी। गड़ा 10 फुट गहरा था। इस वक्त जवाल का वक्त था। रोशनी इतनी थी कि कब्र में रखी हर शे वाज़े नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर और सिपाही ने जब कब्र में मक्कन साई इंतहाई सुकून के साथ लेटते हुए पाया तो कदरे परेशान हो गए। उन्हें यकीन न आया कि 30 रोज से कब्र में बंद शख्स इतना तरोताजा भी हो सकता है। कब्र की गर्मी तो मुर्दे को एक ही दिन में पिघला कर रख देती है और फिर एक जिंदा इंसान का 30वें रोज तक कब्र में लेटकर पढ़ाई करना नाकाबिले फहम बात थी। इंस्पेक्टर और सिपाहियों का एतमाद बुरी तरह डगमगाने लगा। कुछ लम्हे तक वो मक्कन साई की तरफ देखता रहा, फिर अपने अंदर के सख्त इंसान को बेदार करके बोला, मक्कन साई बाहर निकलो। इसकी आवाज पर मक्कन साई को कोई असर न हुआ तो इंस्पेक्टर ने 2-3 बार इसे आवाज दी, इस पर भी इसने कोई हरकत ना की। मौलवी तुम नीचे उतरो और इसे उठाओ, इंस्पेक्टर ने हारिश हवलदार से कहा। पहले तो इसने अजीब खौफजदा नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर हुक्म हाकिम मर्क मफाजात के मकदा कब्र के किनारों पर हाथ रखते हुए नीचे को गया तो इस लम्हा मक्का साई के आस्थाने के बरगर के दरख्त पर हलचल मच गई। सबने खौफजदा होकर ऊपर देखा तो अनगिनत परिंदे गधे के दरख्तों के ऊपर से उड़े और बेकरारी से चीखते हुए बरगर का तवाफ करने लगे। मक्कन शाह की कब्र इस बरगर के
नीचे थी। हवलदार पर परिंदों के शोर से सत्ता तारी हो गया, लिहाजा जब इसने मक्कन पीर को पांव से हिलाया जगाना चाहा तो इसके अंदर में कदर नरमी और मरऊबियत आ चुकी थी। इसकी नजरें मक्कन साई के चेहरे पर थी, जिस पर मुस्कान गहरी होती जा रही थी। इसी लख्ता एक अजीब काम हुआ। बरगर से एक सांप सीधा कब्र में लेटते हुए मक्कन साई की सीने पर आ गिरा और हवलदार की तरफ रुख करके कुंडली मारकर बैठ गया। हवलदार की बहादुरी इतने सारे इत्तेफाकात देखकर खता हो गई। इसे अपनी जान की पड़ गई और वो बाहर निकलने के लिए उछलने लगा। साहब जी बाहर निकाले ये सांप। इंस्पेक्टर भी परेशान हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने एक सिपाही की मदद से हवलदार को बाहर निकाला। मलंगों ने यह मंजर देखा तो वो अकीदतमंदी के मारे नारे मारने लगे। मार काटने वाले मलंग बोला, थानेदार जी मैंने कहा था हमारे मुर्शिद को तंग ना करना। इंस्पेक्टर ने कहर भरी नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर एक सिपाही से डंडा लेकर खुद कब्र में कूद गया। इसने जाते ही मक्कन साई का पांव पकड़ा और जोर से उठाया। इस दौरान वो सांप से गाफिल नहीं हुआ। इसने जट से डंडा सांप पर दे मारा, मगर इस लम्हा मक्कन साई ने इसे गैबतनाक अंदाज में अपनी आंखें खोली, फिर जोर से दहाड़ा और निहायत तेजी से सीने पर बैठे सांप को मुट्ठी में पकड़कर इंस्पेक्टर की ज़रब से बचा लिया। मक्कन साई का ये अस्त्रार, बेदारी और जलालत देखकर इंस्पेक्टर का एतमाद किरची किरची हो गया। तुझ पर खुदा के मार हो, तूने हमारे मलंगों को तंग किया है, हमें सोते से जगवाया, हमारे मुहाफिज को मारना चाहते थे। मक्कन साई की गूंजदार आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर की जुबान गंग हो गई और वो बुद्ध की मानिंद मक्कन साई की तरफ देखता रह गया। तू समझता है हम धंधा करते हैं यहाँ और हमें पकड़ने आया है तू? ले पकड़ ले। और लगा हथकड़ियाँ। मक्कन साई ने सांपों को हवा में उछाला और वो बरगद की घनी शाखों में जाकर चुप गया। इसने कलाई इंस्पेक्टर के सामने कर दी। लगा लो हथकड़ियाँ थानेदार जी, ये हथकड़ियाँ तो दागे हैं, दागे तुम्हारे अंधे लंगड़े कानून के। तुम क्या जानो, हमने खालिक कुदरत और सारी कायनात के कानून बनाने वाले हथकड़ियाँ और तो पहन रखे हैं, ये ले और अपनी हसरत पूरी कर ले। मक्कन साई के लहजे और शख्सियत ने इंस्पेक्टर पर लर्ज़ा तारी कर दिया। इसने सर गिरा दिया और कहा, सरकार माफ़ कर दे, मुझे आपकी दर्जात का इल्म नहीं था। दर्जात का है क्या? कहाँ के दर्जात थानेदार जी? हम तो अभी पहले दर्जे से भी बहुत बहुत नीचे हैं। मक्कन साई तासीब भरे लहजे में बोले। तो इसके अंदर कहीं कल वो गुमान के चिटकने की आवाज़ें आने लगी। मक्कन साई को गिरफ्तार करने के लिए आने वाले कानून इसके आस्थाने की दहलीज पर दोजानो बैठ गया। इंस्पेक्टर ने मलंगों से माफिया मांगी और फिर वो खुद भी मक्कन साई का गर्विदा हो गया। मक्कन साई ने अपनी उंगली से एक बारी अतीक की अंगूठी उतार कर इसे दी और कहा, थानेदार जी मलंग का तोहफा पहन लो, मेरा मौला साई तेरे दर्जात बुलंद कर देगा। वो इंस्पेक्टर जब मक्कन साई के आस्थाने से निकला तो इसका मुरीद बन चुका था और फिर ऐसा पक्का मुरीद साबित हुआ कि अगले ही महीने जब इसे डीएसपी के ओहदे पर तरक्की मिली तो इसे मक्कन साई की दुआओं का समर करार देने लगा। और फिर जब तक वो इस इलाके में रहा, मक्कन साई के आस्थाने पर शब रोज चिरागा होने लगे। नौजवान मलंगों की फौज बढ़ गई और पुलिस इस कच्चे रास्ते पर नती गर्दनों के बजाय सुरंगों होकर सफर करती रही। आज वही मक्कन साई मेरे सामने था। लालू कसाई इसके पैरों में लूट फूट हो रहा था। ओए लालू, मुझसे मिले बगैर वापस जा रहा था? ना सरकार, ना, मैं ये जुरात कर सकता हूँ? वो तो इसी जल्दी थी, इसलिए लालू कसाई ने मेरी तरफ इशारे किया। तो मक्कन साई ने बेवजह कहा लगाया और बोला, वाकई इसे बहुत जल्दी है, ये है भी जल्दबाज, तो इसका काम क्यों नहीं करता? ऐसे ख्वाब भी तो बहुत किया है तूने शैतान। मक्कन साई की ये बात सुनकर मैं चौंका रह गया। वो मेरी वारदात कल्ब के बारे में इशारा दे रहा था और मैं अजीब तरह के एहसासात से दो चार हो गया। लालू हमारे दोस्त इसके मेहमान बने हुए हैं, इसकी अमानत इसके हवाले कर। हमारे मेहमान भी इसके बेकरारी और लाचारगी का नज़ारा कर रहे हैं। मैं मक्कन साई की बात ना समझ सका। अलबत्ता इस वक्त मैं हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत का शिकार हो गया जब लालू कसाई ने शलवार के नेफे में हाथ डाला और अफीम की एक डली निकाल कर मेरे पास ले आया।